Hey everyone, welcome back to my channel UPSC Clarified. I am Zeenath, and in this video we would be looking into the PT 365 and how to read it and cover it. Along with it, we will also look at how to make notes out of it and why the notes is important. So firstly, a brief about myself. I am Zeenath Khatun, and I am going to give the interview this year. And as my interview is scheduled in April, I have a little time, so I wanted to share what I have learned with all of you. So please kindly watch the video till the end. I hope it is of much importance. Now, let's first understand why reading PT 365 is important, or the very first question is it necessary? ठीक है. So if the question is that is it enough or is it necessary, क्या ये सच में इतना ज़रूरी है, तो I have to say that see, you have to read any one current affairs magazine. ठीक है, कोई भी आप ले लो. अगर if you're comfortable with the monthly thing, you can take the monthly thing, read it. आपने कभी पढ़ा है monthly, तो मतलब if you have read the current affairs in the monthly, then you can surely revise it. But अगर आपने monthly magazines नहीं पढ़े हैं, तो you can go with PT 365. Now why only vision PT 365? The first reason is I have read it. मैंने इसको खुद से पढ़ा है. Secondly, it's not important कि आप विजन का PT 365 ही लीजिए. आई हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट द शून्य करंट अफेयर्स के जो मटेरियल आती है, वो PDFs आते हैं. एंड यू कैन गो विथ एनी इंस्टीट्यूट. ओनली आई का कोई भी ले नो, कोई भी इंस्टीट्यूट का आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशन ले सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम एट द एंड ऑफ द डे. हियर वाई PT आई एम टॉकिंग अबाउट PT 365 मीन्स आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस अबाउट इट, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ यूज्ड इट इन माई 2 attempts. ठीक है, दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट. So is the only reason is that, and that's why we'll look into it. And it's a good source to cover all the current affairs. Mostly the very important thing it provides is the background coverage. अगर आपको नहीं पता है तो उसका background भी it covers. And देखो, current affairs करना इसीलिए ज़रूरी है ना कि if you ask me show me how many questions directly come from PT 365, then I don't know, maybe some questions come and some questions won't. But it's current affairs उसका पढ़ने का the major reason ये भी होता है ना कि it will not make create a FOMO in you. Like you won't think that you have missed on something. अगर आपने सारे current affairs पढ़ लिए and you are sitting in the exam by after reading all these current affairs, then you'll feel comfortable, I think. So I think वो वाला stress नहीं रहेगा कि यार मैंने have not read current affairs. So कोई एक you can read any one, कोई भी ओनली वन करिए एंड एनी वन करिए. कोई भी एक ही करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़नी है, बट उसको ज़रूर करके जाइए. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लुक इनटू द पॉलिटी का 365 फॉर 2025 प्रीलिम्स. ठीक है. एंड विल डिस्कस विथ अ ब्रीफ थिंग, वेरी ब्रीफली, कि इसको कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. सो या, दिस इज आवर पॉलिटी का PT. यू कैन सी. सो ठीक है, यहाँ पे इट्स ओनली टिल अक्टूबर, सो वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ पेजेस हियर. अराउंड 65 या 66 पेजेस होंगे. नाउ लेट्स डाइव. देखिए, पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस. ठीक है. नाउ हाउ विल यू रीड इट फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक. नाउ आई एम हियर गोइंग टू टेल यू ओनली फॉर प्री स्पेसिफिक. PT 365 तो मैंने अपने दोनों स्टेज ऑफ एग्जाम में यूज़ की है, प्रीलिम्स एंड मेंस में तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, स्पेशली इन माय प्रिपरेशन. आई डोंट नो हाउ मच पीपल यूज़ इट, बट आई हैव यूज्ड इट अ लॉट एंड इट इज़ रियली गुड फॉर मेंस. प्री के लिए शायद उतना स्पेसिफिक नहीं हो, बट येस इफ़ यू हैव टू रीड एनी वन कंपाइलेशन, यू कैन गो टू विथ एनी, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड. ठीक है. यस. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक इज नाउ विल सी कि आपको नोट्स कैसे बनानी है. ठीक है. एंड पढ़ना कैसे है. ठीक है. हाउ टू रीड. ये दोनों चीज़ें मैं आपको आई विल रीड 2 टॉपिक्स ऑफ द this current affairs magazine and then I'll show you the demo. ठीक है. and if you guys want कि I do the पूरा magazine का if I have to note and make notes and show you how to, then you can ask it specifically. But I think some people like to read it on their own, so it's just for
the overall understanding, if now majority of the people wants the whole explanation, but I think there are so many videos already available, but nobody tells mostly कि आपको एक्चुअली में कैसे पढ़ना है, उसको आपको नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर द फाइनल रिविजन. आई एम नॉट गारंटिंग कि दिस इज़ द फाइनल थिंग, मतलब इसी से आपका होगा, बट this is what I have tested, tried and tested method है, that's it, and it has worked for me and I'm just trying to share that the thing. Okay, so यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक्स लेंगे और डेमो देखेंगे, that's it. ठीक है. Now the first thing is this thing, simultaneous election. Recently देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. ठीक है, अभी तक पास नहीं हुआ है, नॉट पास्ड, बट एज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस में पूछा गया था 2024 के, सो यू हैव टू रीड इसका. तो आप प्री में कैसे पढ़ोगे? ठीक है, पहले तो आपको समझने के लिए PYQs आपको देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पॉलिटी से. ठीक है, एज दिस इज़ अ पॉलिटी करंट अफेयर्स, तो आपको PYQs को देखोगे आप, तो आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है. ठीक है, नाउ सी इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 82A. आप देखो 82A. ठीक है, इसको याद रखिए. साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट जनरल इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. दीज आर द प्रोविजंस. ठीक है, ये सब प्रोविजंस है बिल के. ठीक है, आप इसे याद करिए चीज़ को. 82A आर्टिकल को इंसर्ट किया जाए, दिस इज़ अ न्यू आर्टिकल, एंड 83 आर्टिकल को अमेंड किया जा रहा है. ठीक है, आप मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यू हैव टू ऑलवेज थिंक हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. दे कैन आस्क की कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 82A और आर्टिकल 83 with which of the following themes it is associated. You have to know that it is associated with elections and especially simultaneous elections. ठीक है, ऐसी चीज़ें बहुत बेसिक सा पूछते हैं. दे वोंट आस्क एनी स्पेसिफिक एक्चुअल फैक्ट वगैरह. 83 आर्टिकल इट डिफाइंस अनएक्सपायर टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शन. इसको डिफाइन करता था, इसको हम लोगों ने ना अमेंड करा, और इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग. इट सेज व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर फुल टर्म ऑफ 5 years, पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म शैल बी एन अनएक्सपायर्ड टर्म. ठीक है, पर्सुएंट टू डिसोल्यूशन अ मिड टर्म इलेक्शन शैल टेक प्लेस एंड न्यू लोकसभा शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर एन एक्सपायर्ड टर्म. ठीक है, मतलब अगर कोई भी लोकसभा बीच में इमेजिन 3 साल के बाद में उसका, ठीक है, इट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस एंड इट हैज़ बीन डिजॉल्व, देन जो नई लोकसभा बनेगी वो बस 2 years के लिए काम करेगी. ठीक है, बिकॉज 5 साल के बाद में हमारे इलेक्शंस होते हैं, एंड हमने ऑलरेडी 5 साल का साइमल्टेनियसली सिंक करके रखा है सारे लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो वी हैव टू सिंक ना अगेन. सो इस 2 years टर्म तक ही ये वर्क करेगी. ठीक है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 83. एंड आर्टिकल 172 को भी अमेंड कर रहा है. ठीक है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. एंड आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर. यहाँ पे याद रखिए. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, व्हाट इज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो आपको ये पता है. doesn't mean voting across the country for all elections needs to happen on a single day. एकदम सिंगल डे नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक इट शुड हैपन साइमल्टेनियसली, बस दैट्स इट, नॉट ऑन अ सिंगल डे. पहले हुआ है ऐसा, अगर आपको बोला, अगर इफ़ दे कैन आस्क, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अभी पहली बार होगा, या साइमल्टेनियस इलेक्शंस इट हैज़ हैपेंड ओनली वंस. ठीक है, या फर्स्ट टर्म में ही हुआ था, ऐसे वाले अगर स्टेटमेंट पूछेंगे तो इट इज़ रॉन्ग. हमारे पास 1, 2, 3 and 4 टाइम्स हुआ है इसका, एंड लास्ट है हमारा 1967. आप इसको ऐसे याद रखिए. ठीक है, उसके बाद प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन वाज द मेन रीज़न. उसके बाद से वो जो साइकिल था वो टूट गया था. ठीक है, नाउ 178th रिपोर्ट ऑफ, सो दिस मच इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, मतलब यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया कि बहुत सारे कमीशन ने दिया है, लॉ कमीशन ऐसा, बट दिस इज द जिस्ट. नाउ लेट्स सी, नाउ दिस इज़ अ डेमो ऑफ आप आंसर कैसे लिखोगे. ये हमारा PD 365 पॉलिटी. वॉट आई यूज़ टू डू इज़ आई यूज़ टू टेक बुक. मैं एक बुक लेती थी, क्लासमेट की आती है, मतलब कोई भी आप ले सकते हो, बट इट शुड बी वेरी गुड टू रीड. आई यूज़ टू टेक क्लासमेट बुक्स विच आर लिटिल गुड लुकिंग बिकॉज टू हैव रिटेन माई इंटरेस्ट. एंड वो स्पायरल वाली बुक्स आप ले सकते हो, कोई भी बुक आप ले सकते हो, आप दैट्स चॉइस. उसके बाद वॉट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू हाफ द पेपर. इसको आधा करने से देर आर सो मेनी एडवांटेजेस. आप यू विल राइट लेस एंड आपकी सच में शॉर्ट नोट्स बनेगी. ठीक है, फर्स्ट इज इमेजिन you're writing the heading as simultaneous elections.
दिस इज़ अ वेरी वेरी प्री स्पेसिफिक नोट हो जाएगी, ठीक है, आप बस अपने प्री के लिए यूज़ कर सकते हो. एंड इमेजिन वॉट आई यूज टू डू इज़ वेरी वेरी लेस. इमेजिन हमने पढ़ा था आर्टिकल 82A आई थिंक, राइट. ठीक है, आप ऐसे लिखोगे आर्टिकल 82A. It was related to the simultaneous elections only. New insert, ठीक है, मतलब it is going to be inserted. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 83, ठीक है, ये हो गया अमेंडेड. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमेच्योर dissolution. If premature dissolution, new body for only remaining term, ठीक है. ये सब दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग्स, ये लोग पूछ सकते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने उस दे आस्क्ड अबाउट द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, आई गेस यू रिमेंबर इन 2024 वाला प्री, ठीक है. तो वो दे कैन आस्क यू दिस थिंग, ठीक है, ख़त्म हो गया. एंड यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट article 172. This is with respect to you write like this with a different pen. This is with respect to parliament, ठीक है, and with respect to स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, सेम चीज़ें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, ठीक है, ये हो गया. एंड आर्टिकल हमारा 327, या आप बस आर्टिकल पूरा भी नहीं लिख सकते, ठीक है, जितना आपको आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, ठीक है, इसको सब कर लो. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस टू स्टेट इलेक्शंस, ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, और इट्स सेम, ठीक है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक ख़त्म हो गया. एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आपको पता है ना एग्ज़ाम वो, और आप इसके बाद लिखोगे ये वाली चीज़ दैट हैपेंड till 1967 4 times आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ख़त्म, ठीक है, दैट इज़ नाउ कंप्लीटेड. इसके अलावा आपको इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ठीक है. नाउ द इम्पॉर्टेंस ये भी होता है ना नोट्स बनाने का, कि आप फिर से ये वाली, इसमें तो बहुत कम सी चीज़ें थी कि आपको जो पढ़नी है. अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप बस इससे पढ़ते हो, आपका इनिशियली तो टाइम सेव हो जाएगा, पर यू कांट रिवाइज इट. आपको इस ना, इमेजिन आपको कल एग्जाम है, आपको सब चीज़ें रिवाइज करनी है. अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ना, तो आपको रिविजन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है. ख़त्म हो गया एक टॉपिक, तो आई यूज टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस, ठीक है, एंड इट्स डन. आप ना यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट ईजिली जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है. नाउ द सेकेंड टॉपिक है दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन. इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है. व्हाट देखो, लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें डायरेक्टली है, जो आप ऑलरेडी रिवाइज करोगे, उसको लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये तो आपको पता है, गार्जियल कमेटी, ठीक है. देखो व्हाट आई थिंक, ये मैं क्या करती थी, आई यूज टू रीड दिस थिंग बट आई डिड नॉट यूज टू नोट दिस डाउन बिकॉज दीज थिंग्स, सम थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है. मतलब दिस इज़ अ वेरी, मतलब ऑलरेडी आपको आराम से मिल जाएगा जब आप रिवाइज करोगे लक्ष्मीकांत. तो आपको वैसे भी पढ़ना है, आप तो बस करंट अफेयर्स तो पढ़ के नहीं जाओगे ना प्री से पहले. दिस इज दैट, सो विल नॉट डिस्कस नाउ, विल सी दिस डिलिमिटेशन कमीशन वाला. ठीक है, दिस हैज़ बीन टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. किशोर चंद्रा छंगनलाल राठौड़ के, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है, दैट सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, ठीक है. इफ दैट इज आर्बिट्ररी देन सुप्रीम, इन जनरल ये था ना कि आर्टिकल 82 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन बनती थी, ये था ना कि कोर्ट्स कांट रिव्यू द ऑर्डर्स, बट सुप्रीम कोर्ट ने बताया 2024 के केस में कि कोर्ट्स कैन रिव्यू इट, ठीक है. डिलिमिटेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा और स्टेट दोनों का, ठीक है, आप याद रखो दोनों का, ईच स्टेट. responsibility of delimitation is assigned to a high power board delimitation commission under article 82 such and in such manner as parliament may by law
डिटरमाइन पार्लियामेंट, आप ये याद रखिए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट नहीं, ये लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं, ठीक है, यू हैव दे कंफ्यूज यू ऑन दिस पार्ट। इन इंडिया सच डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 times, ठीक है, ये तो पूछा गया है 2024 में ही पूछा गया था, 4 बार किया इन्होंने, 9 2 3 4, ठीक है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखिए, दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इवन दो इसमें लिखा हुआ है, बट द डिलिमिटेशन कमीशन एज इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी, not a permanent body, this is not this body, ठीक है, constitutional, considered final and unchallengeable in general. The copies of its orders are laid before Lok Sabha and concerned, but no modifications are permissible therein by them, ठीक है, ज़्यादातर मॉडिफिकेशन नहीं होती है। क्या है पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चेयरपर्सन होगा, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। इमेजिन अगर वो लोग दे आर उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगर वो लोग उत्तर प्रदेश के स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिटेशन कर रहे हैं, देन उत्तर प्रदेश के जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे, ठीक है, ऑफ यूपी। एंड नेक्स्ट हमारे कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, चेयरपर्सन की तरह। नेक्स्ट हमारे होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या कोई इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, 3 ही लोग होते हैं। देखिए दिस, ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको नोट करते जाओगे, ठीक है। इमेजिन आप यहाँ पे लिख रहे हो, दिस द फर्स्ट टॉपिक, ऑलवेज इसको मार्क करिए, आपको पता चलेगा कितने टॉपिक्स है, ये तो ऑलवेज कितने भी 50-60 भी होगे तो आप नंबरिंग करोगे उसको, ठीक है, बहुत फ़ायदा है इसके। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिलिमिटेशन कमीशन। I तो used to use how much maximum shortcuts as possible because it is easy. डिलिमिटेशन कमीशन में, हाँ, यू राइट दिस केस, किशोर चंद्रा राठौड़, बस इतना लिखो, कोई ज़रूरत नहीं पूरा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। वो लोग इतना इसमें छोटी छोटी इसमें चेंजेस करके आपको नहीं पूछेंगे कि आप इसको पहचानो, नो, दिस दे वोंट गो दिस मच फैक्चुअल। केस 2024 सुप्रीम कोर्ट, द ऑर्डर्स, इसको आप लिख दो, ये है डीसी, ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ कैन बी चैलेंज्ड इफ आर्बिट्रेरी, ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर दीजिए, इफ आर्बिट्रेरी, ठीक है, इफ आर्बिट्रेरी है तभी, है ना। चलो ये हो गया, और आपको तो पता है, यू वोंट ट्राई द डेफिनेशन, ये तो आप डिलिमिटेशन ऑफ बोथ, मतलब कभी कभी लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब देन वी वोंट राइट, देन यू राइट आर्टिकल 82 के अंदर आते हैं ये लोग, मतलब द बॉडी, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट बाई लॉ डिसाइड्स, ठीक है, द बॉडी के फंक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है, पार्लियामेंट, इसको हाईलाइट करिए, प्रेसिडेंट नहीं। एंड वही है टिल नाउ 4 times, 52 63 73 एंड 2002, ठीक है, ये आप याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कंटिन्यू राइटिंग इसको ही कि स्टैट्यूटरी है, अच्छे से हाईलाइट करिए इसको, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। वही तो होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ना, यू विल नो कि आपको कहाँ फोकस करना है, देन यू विल फोकस। अब जब आप पढ़ते जाओगे तो उतना वो नहीं रहता है कोऑर्डिनेशन अपने ब्रेन से, ठीक है। अब यही डिसीजंस और फाइनल एंड अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट, ठीक है। और लिखो कि, हाँ, कंपोजिशन लिख देना अभी, कंपोजिशन वही स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ कंसर्न, ए करके लिखे से, कंसर्न स्टेट, पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग वेरी फास्ट, सो बी करके लिखे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सी सुप्रीम कोर्ट जज, और हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे चेयरमैन, चेयरपर्सन, ठीक है, यही होंगे चेयरपर्सन, ठीक है, ख़त्म। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, अब इसको हाईलाइट करिए, हाईलाइट, जो भी चीज़ें होती हैं हाईलाइट, एंड ख़त्म।
आपका सारा चीज़ इसमें ख़त्म हो गया है ना। एक्चुअली आपको इसको यहाँ पे लिख देना था, बट आई रोट इन अ फ्लो बिकॉज आप तो पेपर एग्जाम में मतलब यू विल राइट लाइक दैट ओनली ना, यू कैन लाइक इफ़ यू राइटिंग इन अ फिजिकल पेपर। तो देखिए नाउ वी हैव कंप्लीटेड कितने पेजेस, हमारे यहाँ पे 5 पेज ख़त्म हो गए और हमने इतना लिखा है बस। और कितना ईजी है देखिए, इट्स वेरी इजी टू रीड फॉर यू। सो दिस वाज द डेमो, मतलब इसमें हमने कवर करे हैं टॉपिक्स ये और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये तो आप पढ़ लोगे एक बार, और ये तो आप मतलब इसकी नोट ज़रूरी नहीं है क्योंकि लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हो। अगर आप इफ़ यू फील इट नेसेसरी, इसको भी आप सेम लाइन्स पे जैसे हमने 2 नोट पे बनाया है ना, वैसे आप बना सकते हो इफ़ यू फील इट नेसेसरी, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही आपको ना यू कैन मेक ऑल दीज थिंग्स एंड thank you for staying till the end of the video, and if you have any doubts or any requests, you can comment down below. Thanks for watching.